was your last year's turnover or revenue? Converted 1 lakh rupees into let's say hundreds of crores of rupees in 40 years. But कितने साल लगने चाहिए अगर कोई कंपनी आज 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रही है? सप्लाई चेन में गए, आपने एक्सपोर्ट्स में अपने ऑर्डर्स को क्रैक किया, आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया. People can achieve in 5 years what took me 42. So scalability is not limited by resources. Rajiv Chawla, 20 years old. What led you to jumping into manufacturing? मैं हर रोज सोचता था, मेरे मदर से मेरा झगड़ा भी होता था. She kept her cool as if she knew that this is one area where I should be. तो यहाँ से एक्चुअली बहुत सारे सवाल अब ओपन हो गए हैं इस बात से. अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और राजीव चावला जी को नहीं जानते हैं तो लेट मी शेयर अ वेरी स्मॉल एंड वेरी ब्रीफ इंट्रो अबाउट हिम. He started a company called Jairaj Global at the age of 22 in 1985, and today this company is India's largest manufacturer of specialized products, specialized auto components like struts and bellows, and is one of the key exporters of this product also. Mr. Chawla is also the founder of IMSME of India, which is called Integrated Association of Micro, Small and Medium Enterprises of India. It is a non-profit organization and also one of the largest SME networks globally. The goal of this organization is to handhold and support entrepreneurs and SMEs across India. Mr. Chawla has also served on the board of many eminent institutions like SIDBI, NSIC, QCI, Quality Council of India, and has worked in tandem with the government of Haryana and central government for many decades. He is also a highly sought out speaker and speaks in almost 100 events every year. He is also an angel investor and mentor to countless SMEs and startups. So without wasting any more time, let's get into it and understand from the man himself what does it take to build a big business. So सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने मुझे एक the other day you told me that you are a marketing graduate and you were working in the marketing side and advertising side of it. ये सडनली जंप हुआ, ग्रेजुअली जंप हुआ, आप कैसे आए मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल की तरफ? You are talking to the most reluctant manufacturer ever. कभी मैंने सोचा ही नहीं था लाइफ में. आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड फॉर इंजीनियरिंग एंड अदर्स, और ना मेरे फैमिली में और कोई बिजनेस में पहले था. एंड आई वाज एन एडवर्टाइजिंग गाय एंड आई वाज इन मुंबई एंड देन इन दिल्ली, एंड माय एंटायर एजुकेशन, माय एक्सपीरियंस, सब कुछ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को लेकर ही था. But unfortunate circumstances थे उन दिनों. I lost my father. He was very young. He was just about 46 years. I was not even 20. And so I left my advertising career altogether. And I was in Faridabad, so a small industrial township. And I'm talking about 1984. Yeah. 85. At the time, Faridabad was actually one of the biggest industrial towns in India. That's right. But then that was the time when no telephones, no internet, no mobility, everything offline, everything physical, and with very little resources. And then I was guided by a mentor, the way I now reach out to people, and I got good advice and hand-holding from mentors, and I really value them, remember them every day of my life. And they are the ones who supported me, guided me. And I went to a bank. I took a 10,000 rupees working capital limit from the bank. But how much was it in today's context? Possibly couple of lakhs. Couple of lakhs. Yeah. Okay. Yeah. An amount which, in today's time would not even yield a couple of months rent or something. But then I utilized that well. I had a good mentor who kept guiding me at every step. And I remember my first year turnover was 1 lakh. My annual turnover was 1 lakh. But then, it was the beginning. And then next year it was 3 lakhs. So it was not a startup era. No one got equity those days. It was pre-reformed India actually. Yeah, it was all about, funding meant debt funding. Now you raise debt from your family or friends, or you raise debt from banks, institutions. Of course, institutional finance has always been to a fraction. आप देखें आज भी देश में सिर्फ 14% क्रेडिट है जो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से एसएमईज में आता है. और 86% एंटरप्रेन्योर्स आज भी फैमिली और फ्रेंड्स से फंड रेज करते हैं.
ओह, और तो इसीलिए ये गैप अभी बहुत ज़्यादा है. It's a very अभी- big gap, yeah. और अभी तो nowadays fortunately there are schemes of the government जहाँ पर कोलेटरल फ्री लैंडिंग होती है, जहाँ पर मुद्रा जैसी स्कीम्स हैं, स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स हैं, अब जीएसटी आ गया है, डिजिटल बैकग्राउंड है, सिबिल स्कोर्स हैं, जिसके बेसिस पे आज ऑनलाइन एक एम्प्लॉय को भी सिर्फ एक ऐप पे लोन्स मिल जाते हैं. सो नाउ ऑफ कोर्स दैट एरा इज डिफरेंट. देयर आर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, देयर आर बैंक्स, लोन्स अप टू 10 lakh rupees collateral free for just about anyone and everyone. Entrepreneurs now get support up to even 10 crore rupees of loan. Exporters और स्टार्टअप्स के केस में 20 crore का लोन भी आज बिना किसी कोलेटरल के मिलता है, बिना मॉर्गेज के, बिना थर्ड पार्टी गारंटी के. सो यू डोंट इवन नीड दैट. So now, of course, the institutional support, the government support, the entire ecosystem supports MSMEs. Got it. But then that was the time when you had to do on your own. And therefore, when I look back at my 42 years of journey, entrepreneurial journey, and failures भी हुए, setbacks भी हुए. मुझे लगता है कि 10 में से 8 बार फेल ही हुआ. Absolutely. लेकिन अगर 2 बार कामयाबी मिली, so fortunately that took care of my failures. Correct. That was big enough. Yeah, and that is why I believe that if I have one thing today to share with the world of entrepreneurs, then that one thing is that maybe I can help them achieve in 5 years what took me 42. It is only through right advice. Can I be like Google Map for the world of businesses, where people get right advice, first time right, every time, with various options? Can I create an institutional or formal setup where entrepreneurs get all answers to their queries? And which is the right bank to go to, which is the scheme they should apply, where they should set up their business, how they should scale up their business, and what are the compliances required, what are the quality certifications required, how they should maintain their finances, how they should improve quality. It's how, why, when, what. So therefore, this entire journey that now I have undertaken and instituted this program. I created this program called GAPS, the Growth Accelerator Program for small businesses, where I believe people can achieve in 5 years what took me 42. And I see no reason why, if I have discovered something, others need to discover only through hits and trials. So there is and can be a guided roadmap. So the whole world is based upon right technologies, right platforms, right communication methodologies, and right podcasts. For example, in my times, it used to be only books. Even those books would be handful and very few, and one would go to the library, and if that book is issued to someone, then you wait for your turn. So that was the time. Correct. I mean, you couldn't. Finding information was also very difficult. That's right. So resources were mega. Cool. Yeah. But today, I think information technology, this has ensured that the world is flat. Yeah. Equal opportunities for everyone. In fact, world was never more fair. I must tell you, Sonesh, that I find that we were never in a time which was more transparent and more fair. For example, once upon a time, only a king's son could become a king. Today, anybody can contest, win elections, and become not just MLAs and MPs, but there are ministers, pathways basically for including everybody. Prime Minister. Correct. Likewise. Similarly, once upon a time, you would need a rich father, a rich grandfather, a rich parent, a rich family who would buy a showroom for you in a mall, and then you start your trading platform or something. Today, I think if you have a laptop and internet with you, you can reach out to any commerce platform and reach out to the world. So scalability is not limited by resources. So resources are for everyone. It is time now to ignite what is right for you, to understand what is correct, to have a guided mentor or service provider who can selflessly and also with experience give you right advice, so that next time when you try 10 times, you succeed in 8 times rather than 2 in which I did in my time. Correct.
तो यहाँ से एक्चुअली बहुत सारे सवाल अब ओपन हो गए हैं. यू जस्ट मैंशन दैट आपका पहले साल का रेवेन्यू 1 लाख था. व्हाट वाज योर लास्ट ईयर्स टर्नओवर और रेवेन्यू? Well, fortunately now we have multiple businesses, and so we have different plants in Great. Across India. We are into manufacturing. We provide services. My children are doctors. My daughter is a doctor. My daughter-in-law is a doctor. So likewise, so the entire family, of course, has various opportunities. Whereas businesses, Various interests. even in manufacturing, we are into auto components manufacturing. We are into non-auto product manufacturing. wow. So the revenue comes from multiple sources. But then that is what scalability is. It That- takes years to touch that first 1 crore. Correct. And then first 10 crore. Correct. And then first 100 crore. And then that is a time when resources are at your command. Correct. And You're more enabled. that's right. That's right. And if the direction is there, if resources are there, fundraising becomes easier. Fortunately, today I am at a stage when if I propose a project and I want to set up a project, probably it will be very easy for me to get private equity or venture fund. Correct. Or come out with IPO. Correct. So it's your background, your plan, your resources that you bring to the table today. Then investors also trust you. Exactly. So, but then to reach this stage takes Long time. has taken me a long time. Yeah. And I believe that today's world of startups, of course, is different, where you become straight away from zero to hero. And big plans, big dreamers, 140,000 startup registrations in India, more than 150 today already unicorns. So I see the youngsters' growth immensely inspiring and illuminating. But then for hundreds and thousands of other entrepreneurs who are not just in the world of startups, but who are doing traditional SMEs Ji. or manufacturing, Ji. how they can also scale up in their world, how Make in India can be a reality for all of us, how we are achieving the Vikasit Bharat dream of 2047, and where we all play a role, how we become Atmanirbhar in terms of defense, Correct. mobility, Correct. Semiconductors, Correct. so many things. So I think there is space for everyone. Absolutely, absolutely. And there are, like you said, there are equal opportunities, there are pathways and access to information also that exist. Now, it took you 40 years to grow 10,000 times. Like you converted 1 lakh rupees into, let's say, hundreds of crores of rupees in 40 years. स्टार्टअप वाले साइड पर हम देखते हैं तो स्टार्टअप्स ये चीज़ 10 सालों में या 5 सालों के अंदर अचीव करते हैं. कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक मिडिल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है आज, जहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस ऑफ इंडिया या माइक्रो एंड मीडियम बिजनेसेस ऑफ इंडिया ये जर्नी फास्टर कर सकते हैं. व्हाट इज़ योर गिव एंड टेक नंबर? कितने साल लगने चाहिए अगर कोई कंपनी आज लेट से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रही है, उसे एक 10 करोड़ कंपनी बनने के लिए? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आइडियल टाइमलाइन? 3 to 5 years, 8 years? No, not at all. No, why 8 years? And that is just not done. आपने फर्स्ट डे ही अगर बुलेट ट्रेन लिया या फर्स्ट डे ही आपने इन्वेस्ट करके आपने राइट टेक्नोलॉजी चीज़ें की, आपने अच्छी मार्केट को टैप किया, आप अच्छे सप्लाई चेन में गए, आपने एक्सपोर्ट्स में अपने ऑर्डर्स को क्रैक किया, आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, तो आप बहुत इजीली स्केल अप कर जाते हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्टार्टअप्स who are mainly doing just assembly work or importing from China or other countries. Repackaging it and selling it. Repackaging, reselling. Some innovation has to be there. I'm not talking about that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिजनेस गलत है, वो भी एक बिजनेस है और वो भी बहुत लोग कर रहे हैं. लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले अपने कॉमर्स मिनिस्टर को सुन रहा था और बहुत स्ट्रांग उन्होंने और बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और उन्होंने बोला कि इंडिया के स्टार्टअप्स क्या केवल एग्रीगेशन और कनेक्टिविटी करेंगे? क्या हम सचमुच में इनोवेशन करके एरोनॉटिकल में, एरोस्पेस में, मेडिसिन में, मैकेनिकल साइंसेज में, डिजिटल साइंसेज में सचमुच में कुछ डीप डिफरेंस क्रिएट करेंगे? तो अभी तक ठीक है, स्टार्टअप्स लो हैंगिंग फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ भी गैप है एग्रीगेशन किया, उसको स्केल अप किया, या आपने
ई कॉमर्स किया, ट्रेडिंग किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, रिटेल प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट किया. जी. So indeed good work, and yet I believe those were the low hanging fruits. The real innovation I see today in defense projects where startups are working. अब ऑटो कंपोनेंट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत कंपनीज ऑटो कंपोनेंट्स बना रही हैं, मैं खुद पिछले 42 ईयर्स से बना रहा हूँ. लेकिन क्या आप ऑटो प्रोडक्ट्स में ही रहेंगे? आप मशीनिंग आइटम बनाते हैं या शीट मेटल आइटम बनाते हैं, तो क्या अब आप एक कंपोनेंट बेस्ड ड्राइंग स्टाफ्ड इंडस्ट्री रहेंगे, या आप इनोवेट करके उसको अपस्केल करेंगे? आप कंप्लीट कोई सोल्यूशन डिफेंस सेक्टर को दे सकते हैं, आप कोई कंप्लीट सोल्यूशन एरोनॉटिकल सेक्टर को दे सकते हैं. तो क्या कभी हम ज़मीन से आसमान तक भी जाएंगे? ये कंपोनेंट पर है, फिर वहाँ से एक सोल्यूशन पर कैसे आप ट्रांजिट ले रहे हैं, और फिर वो सोल्यूशन में भी आपने सेक्टोरल चेंज कैसे किया, हाई वैल्यू एडिशन एरा में कैसे गए. आज मैं बहुत से स्टार्टअप्स को जानता हूँ जो सैटेलाइट्स के लिए भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं. करेक्ट. और जो स्पेशली जो इसरो आज सैटेलाइट्स बना के दे रहा है, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स का माल स्टार्टअप्स का और एमएसएमईज का उसमें. करेक्ट. तो एमएसएमईज अपने आप को कैसे स्केल अप करें इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, राइट क्वालिटी, राइट productivity, right materials, right design, right testing facilities, and right utilization, फिर innovation in the areas where it is required. So I believe that is where it is very important. और इस तरह की चीज़ आपको एक remarkable गेम चेंजर, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत क्रेजी मिल सकती है आपको. That's true. तो इसी पर एक्चुअली मेरा पहला सवाल था, वेयर वी स्टार्टेड, कि आपने कैसे शुरू किया. तो जैसे एक है कि व्हाट ट्रिगर्ड योर स्विच सो दैट यू व्हेन यू मेंशन दैट you suddenly lost your father and you found yourself back in Faridabad, which happened to be an industrial town in India. अब क्या करना है, क्योंकि करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग करियर भी है या कुछ और भी है, जैसे आप कई चीज़ें कर सकते हो. हाउ डिड यू डिसाइड, या फिर एक एवोल्यूशन था? दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन. इनफैक्ट बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, मैं कई ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूँ जहाँ पर हम मेंटरिंग करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, और उनके प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन भी करते हैं, बैंक्स से उनका लोन्स का टाइप भी करते हैं, और उनको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि बैंक से फंड्स कैसे रिलीज़ करो, या जिस तरह से आज आप स्टार्टअप वर्ल्ड में पिचिंग करते हैं टू इन्वेस्टर्स, तो उस तरह से उनको बैंक को अपने आप को पिच करना है, या अपने इन्वेस्टर्स को पिच करना है, स्टेक होल्डर्स को करना है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आज भी एंटरप्रेन्योर से कहता हूँ कि क्या करना है ये तय आपको करना चाहिए, और ये आप तय करते हैं कई चीज़ों के आधार पर. ओके. आपकी एजुकेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपके पास प्रेजेंट रिसोर्सेज क्या हैं, स्किल क्या है, क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड है जिसमें ऑलरेडी कोई काम है, आप उसको स्केल अप कर सकते हैं. आपके पास एग्जाम्पल के लिए, अब आप करोल बाग में रहते हैं और आपके पास एक ऐसा घर है जो बिल्कुल मेन रोड पे लगता है, तो आई एम श्योर कि वहाँ पर आप एक बेहतरीन शोरूम भी बना सकते हैं लाइकवाइज. लेकिन ये रिसोर्स हो सकता है मेरे पास ना हो, तो मैं किसी और स्ट्रीम को. आपको बेसिकली अपने स्ट्रेंथ्स ढूंढना है, अपने स्ट्रेंथ्स ढूंढने हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, अपना इंटरेस्ट एरिया. एक क्वेश्चन जो कहते हैं ना कि यू हैव टू फाइंड योर व्हाई. करेक्ट. कि आप ये काम क्यों करेंगे, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इसको करके. तो मैंने काम किया है. आई रिमेंबर, मैं एक एग्जांपल भी कोट करता हूँ. आज से करीब लगभग 30 इयर्स बैक एक यंग लड़का मुझे मिला, और ही वांटेड टू डू समथिंग. उसने अपना प्रोजेक्ट मुझे एक्सप्लेन किया. तो वो आटा की चक्की लगाना चाहता था अपने गांव में. अब छोटा सा प्रोजेक्ट था, और उसको 35,000 का मैंने एक इंस्टीट्यूशन से लोन दिलवाया, एंड आई वॉज हिज मेंटर. तो इंस्टीट्यूशन ने उसको 35,000 का लोन दिया, मैं उसका मेंटर था, और फिर मैंने उसको थोड़ा गाइड किया. मैंने उसको ऑर्गेनिक आटा के बारे में कहा कि क्यों नहीं आप ऑर्गेनिक वीट लाते और उसको करते. तो उसने ऑर्गेनिक आटा अपने आप को ब्रांड किया, फिर उसने अपना एक ब्रांड नेम रखा. उसकी पैकेजिंग में मैंने उसको गाइड किया, कुछ मार्केट से उसको इंटरेक्ट कराया, और इतनी तेज़ी से उसने ग्रो किया. और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि उसके बाद आज वो उस ब्रांड के अलावा अपने और भी कई सर्विसेज करता है. और अगर मैं एक ही फिगर दूं कि आज 5,000 से ज़्यादा लोग उसके उस काम करते हैं. ओह वाओ. सो इट्स ऑल अबाउट यू आर फाइंडिंग योर व्हाई.
और आप क्या कर रहे हैं? आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स में आना चाहते हैं, आप रिटेल में आना चाहते हैं, ई कॉमर्स, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हज़ारों चीज़ें हैं। तो एंटरप्रेन्योर तय करे कि उसने क्या करना है। मेंटर इवैल्यूएट कर सकता है, मेंटर एडवाइस करेगा, मेंटर देखेगा कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, एन ओपिनियन शेयर कर सकते हैं आपके थॉट्स पे बेसिकली, उसके प्लान्स को और बेटर कर सकते हैं जी। पर प्लान अपने दिल से निकला हो, और वो रेलवे स्टेशन की कोई पतली सी किताब जो कहे कि इस किताब में 100 प्रोजेक्ट्स हैं कि आप भी आम का अचार की फैक्ट्री लगा लीजिए या आटा की चक्की लगा लीजिए, वो प्रोजेक्ट्स आपको ज़िंदगी में कहीं लेके नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड। तो जैसे अब मैं वही पिक्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ, राजीव चावला 20 years old, लाइक इन द अर्ली 20s, 1984 1985, प्री कमर्शलाइज्ड इंडिया, काफ़ी लाइसेंस राज है, काफ़ी कुछ है, इंटरनेट नहीं है जैसे आपने बताया। अ 20-year-old एडवर्टाइजिंग ग्रेजुएट फाइंडिंग हिमसेल्फ बैक इन टाउन, व्हाट, how did you reflect back on your own strengths? What did you find as in at that time, and what led you to jumping into manufacturing? Okay, I think my biggest strength, something that actually supported me, has been my mother. She is the one who actually sort of forced me that I should be in business, and because in Faridabad manufacturing was the only opportunity I saw around, so I met a mentor. He guided me. For 1 year I worked in his factory. For the first time I saw what is a machine. I didn't even know the difference between a lathe machine and a power press, so many other things. Understood. So that was a new world for me. So I was there, I learned there things for almost 9 months, then started my own and guided again by the mentor. And that kept the pace moving. And fortunately today we have 6 plants in 4 states across, and we do business globally. And of course now the growth is by choice. We select projects, we decide what to do, what not to do, and so that sort of gives you more strength to try to master your future, even though no one actually owns the future. A lot depends upon the forces which are out of our control, and yet in your own area you would want to do your best. So but initially phase में मेरे लिए बहुत challenging था. मैं हर रोज़ सोचता था, मेरे मदर से मेरा झगड़ा भी होता था कि आपने मुझे एडवर्टाइजिंग से मैन्युफैक्चरिंग में फोर्स कर दिया. But today I am so grateful to her, and that how she guided me, and she kept her cool, and she kept her strength. Correct. And she, as if she knew that this is one area where I should be. And then when I grew up, I have a son now, and so I of course wanted him to be in my business, but not by Force. Not by force certainly, and by his choice. Yeah. How he would come forward and say, I want to join your business. Correct. And so that of course requires certain sort of grooming, bringing them up. तो नई नेक्स्ट जनरेशन को अपने बिजनेस में लाना एक कला है. और ताकि वो आपकी ड्रीम्स में बिलीव कर सकें, वो आपकी ड्रीम्स में जुड़ सकें, वो आपकी ग्रोथ या आपके काम के साथ अपना भविष्य देख सकें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नेक्स्ट जनरेशन क्यों ज्वाइन करेगी. So when you align the dreams of the next generation and you present your business as a platform where they find it simpler or easier or better to achieve and realize their dreams. Understood. I think that is what has been phenomenal. So if I divide my journey into 3 phases, is the first 10-15 years was only the years of pure struggle, pure survival, and because from a tiny or a micro unit you are just trying to survive your time, and then in those 15 years traditional things also come in. You have to get married, and then you have children. Correct. So you have a family. So while your business is still moving in the micro segment, your other responsibilities are also there. Yeah. Fortunately I could take care of many of these things, and kept learning, kept doing new things every time. Correct. I was always the first time user of anything or any idea. So
Early adopter for technology earlier, and for everything. always, and I burnt my fingers as well, but never regretted, because every experience either gave me immediate gains or experiences. Correct, And in both ways I was the gainer. Correct. And so next 15 years were the years when there is some size, you scale up in society, in your areas of services. Fortunately, I've always been extremely involved in public life, the general secretary or the president of industry associations, and then representing some of the banks or even the public sector undertakings on their boards. This second phase gave me a lot of exposure to the world of policymakers and corporates, where while being a small entrepreneur myself, I would be on the board of a bank. Correct. Or would also understand the world of corporates and the policymakers. So this phase, widened my knowledge base, my experiences. I started working not just in my company, but with hundreds of other entrepreneurs who were my members in industry association, industry body. Correct. So who would come to me with their challenges, and collectively then we would find solutions. You started to live there from their shoes. That's also from their experiences. And then that is why perhaps today I can say that my business experience is not limited to 42 years. Yeah. It is perhaps 42,000 man years. Yeah, correct. So तो आपके साथ में जैसे आपके 1985 में आपने शुरू किया, I think in this area also, Faridabad, Gurgaon, Delhi area also, there were no major automobile manufacturer set up. Maruti itself. There were. I remember when I was setting up, जब मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा था, तो उस समय मारुति का प्लांट तभी लगा ही था, शुरू ही हुआ था. हाँ. या और मारुति सुजुकी एक नया मैन्युफैक्चरिंग कल्चर लेके इंडिया में आई. करेक्ट. पहली बार इंडिया ने ग्लोबल लेवल की क्वालिटी, द जापानीज बॉट देयर फिनेस टू इंडिया. और आज भी हम अपने बिजनेस वर्ल्ड में जापानीज टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं. पोकायोके, काइजन, 5S, JIT, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड टोयोटा सिंगल लाइन. करेक्ट. लॉट ऑफ. तो मैन्युफैक्चरिंग में आज भी भारत में जापानीज टर्मिनोलॉजीज, TPM, TQM, so a lot of these things come from Japan. So timing did play a good role in that. So it was a growing era, and there was a lot of churning out. A lot of the old giants started closing down. पुरानी कारें जो बनती थी, पुराने मोटरसाइकिल जो बनते थे, राजदूत मोटरसाइकिल, बजाज स्कूटर, एम्बेसडर, फिएट, वो फेज आउट हुए, और नए एरा की बाइक्स, यामाहा या सुजुकी या और बाइक्स आई. बजाज ने कावासाकी के साथ किया, और उसके बाद फिर बजाज ने इंडिपेंडेंट किया, हीरो अपने साथ होंडा को लेके आया. ये सभी ये 80s की बात है. तो ये 80s में बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स आए, तो उस वेव का मुझे फायदा भी मिला, एंड मैं इनकी सप्लाई. बट यू हैव टू बी देयर टू काइंड ऑफ टेक एडवांटेज ऑफ दैट, एंड यू हैव टू बी थिंकिंग इन द राइट माइंडसेट, लाइक यू सेड. ऑफ कोर्स, ऐसे हर किसी को नहीं मिलेगा फायदा उसका. नहीं, और जितने लोग थे सबने उतना फायदा नहीं भी उठाया होगा. एग्जैक्टली. तो इट इज योर प्रिपेयर्डनेस आल्सो, योर ओपन माइंड. आज भी फॉर एग्जांपल, आज मैं कहूं कि एरोनॉटिकल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में टेंडर्स ओपन है, बहुत सारे, बहुत काम है. बट अगर कोई सोचेगा और करेगा तभी वहाँ जाएगा. अदरवाइज अगर लिमिटेड हम अपने वर्ल्ड में रहेंगे कि मैं तो साइकिल का पार्ट बनाता हूँ, या मैं तो रिक्शा पार्ट बना रहा हूँ, या मैं तो टू व्हीलर की कंपोनेंट बनाता हूँ, तो और नई इन्वेस्टमेंट या नई थॉट प्रोसेस में, नई टीम्स में इन्वेस्ट कोई नहीं कर रहा है, तो देन दैट इज नॉट राइट. तो आप को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा आगे के लिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे. सो इन टुडेज पार्लेंस, जैसे आज हम 2025 में बैठे हैं, 40 साल 85 को निकल चुके हैं मोरलेस. इन 40 सालों में वी हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पर अब हम फाइनली डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स का फेज आउट होना का एरा शुरू हो गया है. इन द नेक्स्ट 5 years ऑल टू व्हीलर्स विल बी रिप्लेस, एंड 10 years में शायद 4 व्हीलर्स भी हो जाएंगे. नाउ जैसे आपने एक बार शेयर किया था कि एक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन कार में 2000 मूविंग पार्ट्स होते हैं, और एक EV में 18 मूविंग पार्ट्स होते हैं या 20 मूविंग पार्ट्स होते हैं. Now the context is shifting. What does it mean for so many auto component manufacturers which are like littered across the NCR area? देखो, and what does it mean for you also? सुनेश जी, देखिए, ये चर्निंग, इस आंसर को इमीडिएटली देने से पहले अगर मैं एक स्टेप आपको पीछे लेके चलूं, आप देखिए, जब कैसेट आया तो ग्रामोफोन खत्म हो गया.
फिर सीडी आई तो कैसेट की फैक्ट्रीज बंद हो गई, फिर डीवीडीज आए, फिर MP3 प्लेयर्स आए, और अब तो इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप म्यूज़िक को डाउनलोड कर लेते हैं, साउंड को डिजिटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो यू डोंट नीड अ कैसेट प्लेयर और अ रिकॉर्ड प्लेयर और टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन टू रन। तो इस तरह की चर्निंग डीमटेरियलाइजेशन को लेके आती है, और ये किसी भी इनोवेशन एरा का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये पूरे प्रोसेस को डीमटेरियलाइज कर देती है। व्हेन मैनकाइंड विल नॉट नीड दैट प्रोडक्ट एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, एक ज़माने में कोडक की फिल्म से ही 90% पिक्चर्स खींची जाती थी। टुडे यू डोंट नीड अ फिल्म, डिजिटल कैमरा आपके हाथ में। और मैं हमेशा एग्जांपल भी देता हूँ कि एक स्मार्टफोन जो हम कैरी कर रहे हैं, उस स्मार्टफोन में इतने गैजेट्स हैं, कैलकुलेटर है, कैमरा है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम्स हैं, साउंड रिकॉर्डर्स हैं, इतना ऐप्स हैं, इतना सामान है कि अगर वो सब सामान अलग अलग लेंगे तो 5.5 करोड़ रुपए लगेंगे वो सामान अलग अलग लेने में, जिनकी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अब एरा ईवीज़ का है। जाहिर है अब ईवीज़ आई हैं तो अब ईवी में फ्यूल टैंक की ज़रूरत नहीं है, ईवी में ऑयल पंप की ज़रूरत नहीं है, ईवी में रेडिएटर की ज़रूरत नहीं है, ईवी में इंजन की ज़रूरत नहीं है, ईवी में और बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। तो वो कंपोनेंट्स अब नहीं चाहिए। जब वो कंपोनेंट नहीं चाहिए होंगे आने वाले वक्त में, तो जाहिर है वो फैक्ट्रीज बंद होंगी या कम होगी। मोटरसाइकिल में ही लीजिए, मुझे याद है मैं कार्बोरेटर के पार्ट्स बनाता था आज से 35 ईयर्स बैक। अब वो कार्बोरेटर लगना बंद हो गया है। तो अभी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो बेसिकली माय क्वेश्चन वाज मोर स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट मान लीजिए मैंने कुछ केपेक्स इन्वेस्टमेंट किया था उस उस प्रोडक्ट, उस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, एंड इन माई हेड आई डिड नॉट सी द फ्यूचर कमिंग, आई वॉज लेट्स से नॉट अवेयर इनफ, बट नाउ द फ्यूचर इज हैपनिंग एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हु आर ऑलरेडी इन दैट जोन, जिसमें उन्होंने कुछ केपेक्स इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ लोन चल रहा है, कुछ और है। नाउ दे आर फोर्स्ड आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज ईदर दे हैव टू इनोवेट और दे हैव टू लाइक एग्जैक्टली यू हैव टू इनोवेट। लेट मी टेल यू कि आज लेट अस से कोई शीट मेल्ट के यूनिट्स हैं, वो पावर प्रेसेस चलाते हैं, अब वो मशीन्स वही हैं, और उस मशीन्स पर अब वो कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं, कोई डिफरेंट सेक्टर की बना सकते हैं। आप एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग करते हैं, अभी आप एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग से आप इंजन डाई कास्टिंग करते हैं। अब अगर इंजन या आपके उन प्रोडक्ट या फ्यूल टैंक्स या उनकी ज़रूरत नहीं है, तो अब आप नई चीज़ों को डाई कास्ट करिए। आज एलॉय व्हील्स जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले तक एलॉय व्हील बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम गाड़ियों में लगती थी। आज हर गाड़ी, हर टू व्हीलर में आज एलॉय व्हील चाहिए, एक दैट इज़ अ लेटेस्ट थिंग। तो आज यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितने एलॉय व्हील्स हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कमर्शियल सेक्टर में, तो अभी बहुत एलॉय व्हील्स की ज़रूरत है। तो अभी तो डाई कास्टिंग सेक्टर ही नेवर एंडिंग सेक्टर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि डाई कास्टिंग बंद होगी, लेकिन हाँ, अगर कोई इंजन बनाता था तो शायद अब उसको डिफरेंट एरा में जाना पड़ेगा। हो सकता है वो और टेक्नोलॉजीज़ में, सैटेलाइट्स में, और जहाँ उसका इस्तेमाल है वहाँ करें। तो अपने आप को इनोवेट करना, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी अपग्रेड करना, किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट न रहना, आगे आने वाले टाइम को समझना, अगले कुछ सालों की तरफ देखना कि आगे किन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, किन चीज़ों की डिमांड टेपर हो रही है। बहुत से चैलेंजेस आते हैं। आप डायमंड वर्ल्ड में देखिए कि अब लैब ग्रोन डायमंड बनता है। नाउ लैब ग्रोन डायमंड इज़ अ चैलेंज टू द नेचुरल डायमंड, एंड प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एंड प्रोडक्ट सेम है। So it's a challenge there. So be it the jewelry segment, be it garments, फैशन में हर रोज़ फैशन ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, तो किसी के पास पुराना डिज़ाइन का स्टॉक होगा तो शायद नहीं बिकेगा। तो जैसे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर को, एक डिज़ाइनर को नए डिज़ाइंस को समझना है, एक फिल्म मेकर को आगे आने वाले नए फिल्म्स ट्रेंड्स को समझना है, म्यूज़िक में नए ट्रेंड्स को समझना है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में, ई कॉमर्स में, क्लाउड किचन्स अब एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक यू नीडेड टू हैव ओनली प्रॉपर रेस्टोरेंट फॉर प्रेजेंटेशन एंड थिंग्स, एंड टुडे cataloging is online, you just need a kitchen. That's right. So it's a new era, and of course ये भी चेंज होगा। हाँ, अगले 5 साल में देखेंगे इनमें भी बहुत बदलाव आया। तो जैसे एक हुआ
death by lack of innovation या death by resisting change. Let's say there are multiple reasons due to which companies fail. I would like to ask you कि क्या आपकी जर्नी में कभी ऐसा हुआ है that you have come very close to an hour par situation, and then how do you deal with it or what happened? Maybe any one or two biggest events that you can remember. Yes, I remember. When I had started, my factory had only hand molding machines, manual. Yeah. So, and talking about 1985, and 85 से लेके शायद 90 या 91 तक हम उसी रेंज में रहे. And then was the time for fully automatic machines, injection molding machines. अब प्राइस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था उस इन्वेस्टमेंट में, और जो प्रोडक्ट्स अब मुझे न्यू लीग कस्टमर्स को देने थे, जो जापानीज सप्लाई चेन में मुझे जाना है, मुझे जैसे मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स लिए कई कार्स के और टू व्हीलर्स के जो इंडिया में आया, मुझे उनकी सप्लाई चेन में जाना है, तो उनकी सप्लाई चेन में जाने के लिए मुझे राइट टेक्नोलॉजी, वो सेटअप चाहिए था. नाउ इट वाज अ चिकन एंड एग स्टोरी. करेक्ट. कि आप पहले वो सेटअप लगाएंगे तो बिजनेस मिले, या पहले बिजनेस मिले तो सेटअप लगे. करेक्ट. तो ये एक रिस्क था, एक बहुत बड़ी लीप थी. इट वाज अ बिग लीप. और मैंने तब बैंक से नया लोन लिया, उस समय एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, अपने घर को मॉर्टगेज किया. आप देखिए एक एंटरप्रेन्योर सब कुछ मॉर्टगेज करके कितना बड़ा रिस्क लेता है. और मैंने उस रिस्क के साथ फिर वो मशीन्स ली, एक टूल रूम लगाया, मोल्ड डेवलपमेंट सेंटर बनाया. इट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड fortunately that yielded results because I kept in line in regular communication with my customers. My mentors played a good role. They guided me well how to keep in touch with new technologies and making sure that my customer understands that I'm investing this. Similarly, a time came, this was 2006, when one of my customers was setting up a unit at Uttarakhand. Okay. And there was a special excise free scheme and income tax free scheme which many large industries were taking advantage of. In Rudrapur most likely. That's right. Haridwar, Rudrapur, Roorkee, that Yeah, area. yeah. So I was a very small unit in Faridabad. अब मेरे कस्टमर वहाँ गए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी वहाँ लगाएंगे तभी हम आपसे ले पाएंगे, क्योंकि एक्साइज का बेनिफिट हमें तभी मिलेगा. अदरवाइज हम उत्तराखंड में किसी यूनिट को डेवलप. This benefit is in terms of the price that they get? This was the benefit for them, not for me. Not for me. Oh, okay. Because there was excise duty exemption for 10 years you procure for their from products. them. Okay. तो let us say अगर वो मोटरसाइकिल वहाँ बना के बेचते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, जो let us say वो कहीं और बना रहे हैं और बेच रहे हैं. तो ये जो प्राइस एडवांटेज है, क्योंकि मार्केट में एक ही प्राइस पे गाड़ी बिकती है, तो ये जो बॉटम लाइन इंक्रीज हो जाएगा, बॉटम लाइन उनका इंक्रीज होगा. तो उन्होंने कहा कि हम ये प्रोडक्ट वहीं से लेंगे अगर आप वहाँ लगाएंगे. तो मैंने 2006 में, मेरा बहुत छोटा सा तब यूनिट था, मैं यहाँ से 20 साल पहले की बात आ रहा हूँ, तब फर्स्ट टाइम मैंने फरीदाबाद में रह के सोचा कि मैं भी एक यूनिट वहाँ लगा लूँ, एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए जो अकेला हो. उस समय माय सन वाज आल्सो इन जस्ट स्कूल, एंड तो तब बड़ा मुश्किल लगता था कि इतनी दूर कैसे जाएंगे, जगह लेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दो जगह मैनेज कैसे होगा. And these days going to Rudrapur is easy. That time 10 hours one way trip it was. But more than that, तब तक वे ऑफ मैनेजमेंट वॉज बीइंग फिजिकली प्रेजेंट. आप फैक्ट्री में प्रेजेंट हैं तो लड़के काम कर रहे हैं, अपने सामने आप करा रहे हैं, आपके सामने स्क्रैप सेल होता है, आपके सामने प्रोडक्शन होती है, रिजेक्शन मॉनिटरिंग होती है, रॉ मटेरियल मॉनिटरिंग होती है. लेकिन डिस्टेंस से आप कैसे मैनेज करेंगे, ये एक नया ओपनिंग था. आई एम वेरी हैप्पी कि इसको हमने कॉल को लिया और ये एक गेम चेंजर बना हमारे लिए. आज हमारे अगर 6 यूनिट्स हैं तो अब हमें किसी भी यूनिट में फिजिकली बैठने की ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज अब हम ERP से मैनेज करते हैं, एक सिस्टम से मैनेज करते हैं. प्रोफेशनल्स हैं जो देखते हैं, फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं डीलिंग्स में, और तो एक नया लेवल. सो यू कैन से स्मॉल यूनिट कॉर्पोरेटाइज हो गया, एक कॉर्पोरेट कल्चर में लेके आया. तो ये एक गेम चेंजिंग मूवमेंट ला. लाइकवाइज ऐसा कई दफ़े आया कि कोई एक छोटा सा बिजनेस हमें कहीं दिखा तो उसके लिए बड़ी मशीन ले लेना जिसका अभी काम नहीं है, बट इस
एंटिसिपेशन में कि आगे टाइम मिलेगा। तो आई थिंक इट्स अ जर्नी, साथ साथ रिस्क लेते रहना। कभी आपको नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कभी नए प्लांट्स लगा के एक रिस्क कॉल लेना पड़ता है। अब हमने गुजरात में यूनिट लगाया, इट वाज 2019 एंड उसके बाद 20 में कोविड आ गया, तो अभी हमारा यूनिट स्टार्ट भी नहीं हुआ था। एक साल हमने वहाँ इतनी कॉस्ट बेयर की, खर्चे किए, और जैसे ही काम स्टार्ट होने का वक्त आया तो कोविड में लॉकडाउन्स हो गए। इनफैक्ट बहुत दिक्कत हुई, हमारे बहुत से कर्मचारी वहाँ से अपने घर चले गए। और तो इतनी दूर से आप भी कोविड के लॉकडाउन में हैं, आपके बहुत से कर्मचारी वहाँ से भी अपने गाँवों में चले गए भय की वजह से, कोविड की वजह से। तो ऐसे में कैसे मैनेज करना कि एटलीस्ट सिक्योरिटी रहे, सेफ गार्डिंग हो, लॉकडाउन कितने समय चलेगा, 10 दिन चलेगा, अनसर्टेनिटी थी। तो उस एरा को मैनेज किया, और फिर उस एरा को मैनेज करने के बाद फिर जब कोविड समाप्त हुआ समय, तो फिर कस्टमर के प्रोजेक्ट्स को रिवाइवल में टाइम लगा। तो जो प्रोजेक्ट 6 महीने में स्टार्ट होना था वो 2.5 साल लगे। तो 2.5 years वी ब्लेड इन आवर ऑपरेशन कॉस्ट, क्योंकि आपको स्टाफ, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप, बिजली के बिल, रेंटल्स सब पे करने हैं, लेकिन बिजनेस है जो स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसको हमने सर्वाइव किया, ओवरकम किया, और टुडे इट्स अ गुड प्लांट विच इज़ रनिंग। बट इसने हमारे कॉन्फिडेंस को कभी ख़त्म नहीं किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आवर कस्टमर्स अंडरस्टूड। उन्होंने भी हमें बोला कि वक्त सभी के लिए ऐसा है, बट अगर कर लोगे तो कल को जब टाइम ठीक आएगा तो अच्छे टाइम में भी आप ही रहोगे। तो इसीलिए मैं बाकी एंटरप्रेन्योर से कहता हूँ कि अगर राइट एडवाइस हो, राइट मेंटरिंग हो, आपको सही रोड मैप दिखाया जाए, और कभी हिम्मत भी, आपका हाथ भी थाम लिया जाए कि आप अकेले नहीं हो, और ऐसे में अगर आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ग्रो करते हैं। करेक्ट। सो जैसे दीज आर लेट्स से सम एग्जांपल्स जहाँ पर एक मेजर सेटबैक हो सकता था, या फिर एक सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर इफ नॉट डेल्ट properly it may like turn around the fortune or the fate of the company. What were some of the biggest wins, maybe one or two of the biggest wins of your last 40 years that still swell your like chest with pride? I would say some principles which we adopted when we had nothing in hand, those principles have stood by us, और उनकी वजह से बहुत ग्रो किया। आज हमारे यहाँ एम्प्लॉय चर्न आउट बहुत कम है, and we have people working for years together, experienced people, and so they got that atmosphere, right remunerations and right hand holding, right personal care. बहुत वक्त उतार चढ़ाव का इतने सालों में आया, कोविड जैसा टाइम भी आया, और भी चीज़ें आई। So team building and taking care of team has been one thing. Then very fair, very transparent dealings with our customers. तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, एक नए प्रोडक्ट थे जो अभी तक कस्टमर्स इंपोर्ट कर रहे थे, वो उसको इंडिजनाइज करना चाहते थे। सो दे आस्क्ड अस, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, बट देन वी हैड टू इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स बिफोर द ऑर्डर्स, एंड नो वन वाज श्योर कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट वी टुक दिस कॉल, वी रिस्क्ड इट। हमने मशीन्स खरीदी, R&D किया, डेवलपमेंट किया, 3 साल लगे। इट टुक अस 3 years of continual testings and trials, and finally, and once that product was approved, we are fortunate, then it scaled up. Aaj we are the largest manufacturer of that component here, and we are exporting as well. So often life and business gives you opportunities. You have to take a calculated risk. एक कॉल लेनी पड़ती है, और अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कस्टमर के इकोसिस्टम को समझना पड़ता है, कस्टमर की भी जेन्युइन रिक्वायरमेंट को समझना होता है। और तो ये सब मिलकर फिर एक फेथ, एंड देन अबव ऑल गॉड इज़ ऑलवेज देयर, एंड आई एम श्योर कि अगर राइट स्पिरिट से, राइट इंटेंशन से आप काम करते हैं तो द एंटायर यूनिवर्स विल गैदर अराउंड टू गिव यू सक्सेस। सो वी हैव टेकन दिस कॉल। हमने कस्टमर्स के कहने पे प्लांट्स लगाए, वो भी एक रिस्क था।
जैसे मैंने बताया गुजरात में कोविड आया तो भी हमने प्लांट को बंद नहीं किया, उत्तरांचल में हुआ या इस तरह से प्रोडक्ट्स आए. सो इट्स अबाउट रिस्क टेकिंग एबिलिटी. एक बजट तो आपको मान के रखना चाहिए एक लेवल पे आने के बाद कि ये आप नए प्रोजेक्ट्स में एज अ रिस्क लगाएंगे, रिटर्न आए या ना आए. तो वैसे ही जैसे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और 10 में से एक स्टार्टअप चलता है, 2 नहीं भी चलते हैं, तो उसी तरह बिजनेस में भी एक लेवल आता है जब आप रूटीन प्रोडक्ट से हटकर जब कुछ नए लीग में आना चाहते हैं. सो एक रिस्क बजट लेके चलना चाहिए और आप 5 बार ट्राई करेंगे और एक बार भी कामयाब हो गए तो वो कामयाबी फिर कई गुना होती है. What is your personal framework of discovering a right product? And I'm asking this in the context of the struts and bellows that you make, because I read the website. Plastic struts and bellows are neither hard plastics nor soft rubbers. Elastomers. Elastomers you As call we them. call, Okay. And it's like a very unique product, at least it sounded to me, क्योंकि ना ही प्लास्टिक है ना ही वैसा है. और अभी तक ये रबर में ही रहते थे एंड अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत मेजर ड्राइव है. रबर इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज नॉन रिसाइक्लेबल. उसका एंड ऑफ व्हीकल लाइफ ऑल्सो इट wears down faster. उसमें सूरज और एक्सपोजर वगैरह में भी काफी खराब हो जाता है. more than that, today it is there's an end of vehicle life policy, there's a scrapping policy. Correct. Sustainability standards are very high. Circular economy is in, and looking at all this, most of the rubber products now, customers are moving away. There are excellent companies like Suzuki, Mahindra, Tata. Very consciously now they are moving away from rubber, traditional rubbers, EPDM, to what we call the TPEs and TPVs, Okay. elastomers, जिसमें कि क्योंकि उसमें सर्कुलर इकोनॉमी आती है, अच्छा. उसमें सस्टेनेबिलिटी है, एंड ऑफ व्हीकल लाइफ है, एंड और ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं आज न्यू टेक्नोलॉजीज़ में. फिर ईवीज़ में आपको व्हीकल्स का वेट कम करना है बिकॉज यू वांट द batteries to give you Perform a better. longer mileage. So weight is important. So we took advantage of that. We were the first movers, and then naturally that advantage remained. तो वो एडवांटेज तक पहुंचने के लिए इज देयर अ फ्रेमवर्क दैट यू टुक, और लुकिंग बैक कैन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन 3-4 की पॉइंट्स दैट वन मस्ट लुक फॉरवर्ड टू? नहीं, ऐसा मैं आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट for such a long thing. I think it was the customer's call. It was an opportunity. We took a risk. For 2-3 years we did R&D, and 3 years we purchased machinery, we did a lot of mold developments, testing, etc. And once we were successful, then naturally it paid off. But then it takes years of... So I would not say that we were too sure about the results. Understood. That is not the... It's an R&D. That is also what you're communicating, that you can never be too sure about results. You just have to earmark a budget, some conviction, and have faith in the process. True. I think it's true for every IAS aspirant. It's true for every chartered accountant aspirant. It's true for students. Correct. Who prepare for examinations. They give their prime years preparing for civil service, etc. And sometimes they cannot make it, or should I say, only a few can make it. Yeah. But then the whole world is about that, and people give everything preparing for something. And then that is why I say your passion, your right mentoring, your coaching, the right advisors around you, all that matters. देखिए, I always say that whether it is Olympics or IPL or business, you cannot reach the peak without a coach. So you need a coach who can build on your skills. So talent and skills, talent is inherent. Natural हो सकता है, skills can be developed, but a coaching will actually polish and groom and take you ahead. And that is what why business coaching is extremely important. So I'm going to extract some more nuggets of wisdom around this from you. What is that one thing, just one thing, that you would have done differently? A very tough question, and something which I never thought of, because I always did what I wanted. And so I've acted in small movies for fun. I sing for fun. I record songs. I've done fashion shows in my time.
So everything. I mean, it's been a bit of everything. I've played games, I've lived my life, I've danced and I've sang and everything. तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि I would have done something different. ऐसा कुछ नहीं. I think I've taken the life as it has come. I've made my mistakes. There've been losses. Oh yes, this does tell me. I once acquired a company almost 15 years back, and I did not go through the right due diligence process. And I did not have a mentor at that time who would guide me to how to acquire a company. So it was a hurried decision. Only the basics that I knew I could see, and I acquired a company, and which is one of the worst business decisions that I have made in my life, and that did put me back, many years. Because with limited resources, if you lose that small capital that you carry with yourself, then naturally that's a setback. So that gave me a lot of experiences, a lot of lessons. And thereafter, I mean, even though that situation has not come till date, no opportunity has come my way that I would be acquiring a company. But yes, today I am ready, and I understand this subject so deeply that I would have advised hundreds of entrepreneurs on this. कि क्या कंपनी एक्वायर करने से पहले, टेक ओवर करने से पहले, या उनके साथ कोलैबोरेशन करने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखो, हाउ टू सेव गार्ड योर इंटरेस्ट, आईपीओ लाने इसके लिए क्या तैयारी करो, इन मैनी वेज. सो जब भी अपना स्टेक डाइल्यूट करें या दूसरे का स्टेक टेक ओवर करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो वो क्या उसमें और देखने की ज़रूरत है. सो आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट एन एक्सपर्ट नाउ, बट आफ्टर आई हैव बर्न्ड माई फिंगर्स वंस. आफ्टर अ कॉस्टली मिस्टेक. आप मुझे कुछ दिनों पहले जैसे बता रहे थे कि अगर आप थोड़ा और डिजिटल पर्सपेक्टिव या डिजिटल माइंडसेट लेकर चलते पहले से, तो दिस कुड हैव बीन अ मच लार्जर स्टोरी. सो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली पूछना चाह रहा था कि इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू मे बी एडवाइस द न्यू जनरेशन और द नेक्स्ट जनरेशन, something that reflects from your own experiences basically? There was one thing which I can of course look back is that about 15 years back, when many of these new aggregators were coming, when many startups were all around and they were aggregating the raw material requirement or insurances or placement services and taxi hiring and so many other apps today that you see, when the whole world was into digitalizing and aggregation of services, which I say the low hanging fruits Correct. in this market, I could have stepped in. I had the mindset. I even had a team, small team, and I did try, but I think I did not try long enough. And so there are some dream projects which I carried at that time, which sometimes, which I half-heartedly initiated, but didn't take a full plunge. I think that is one regret. Otherwise, I'm sure maybe, who knows, I could have created a couple of unicorns by now, in addition to what I do. So this is one area which remains close to my heart, and I'm sure one day I'll find someone like you to take forward that dream, because you need co-founders, you need a CTO, you need co-dreamers, Correct. people who can dream together. Wow, that's a beautiful word actually, co-dreamers and co-builders. Yeah, Correct. yes. So the day I find a co-dreamer, some of those projects I still believe have immense opportunity to scale up and become unicorns in no time. So the day I find such tech savvy, team of wolves. When I say wolves, which means Pack. skilled people. Oh, skilled people. Skilled Okay. people. So hungry wolves. Which means people who are there, who are desperate to do something, who have the skill set, and all perhaps they want is some support and some platform, direction. a launchpad. And this is one thing which I'm sure going to do, and maybe in coming few months I'll initiate some of those startups. But again, I don't want to take the role of a founder. No, I want to take the role of a supporter, and let the youngsters who are much
better in technology and its adaptation than I can ever be, and give them a free hand. And who knows, a couple of new unicorns could be in my portfolio in courtesy youngsters like you. सो जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आई एम श्योर आप बहुत बड़े बड़े लोगों से अपने लाइफ में मिले होंगे. एनी 3 or 4 पीपल हुज नेम ऑल्सो यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग, और उनसे क्या सीखने को मिलता है, उनसे किसी को क्या सीखना चाहिए? क्योंकि हर इंसान को शायद बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता, और जब आप किसी से मिलते हो तो आप उससे कुछ यू टेक समथिंग बैक, यू कैरी फॉरवर्ड समथिंग लाइक समथिंग अराउंड दैट यू कैन शेयर. देखो, मैंने लाइफ में बड़ों से बहुत सीखा है. स्कूल में आई थिंक आई वॉज द डार्लिंग ऑफ ऑल माई टीचर्स, एंड आई वॉज वेरी पैम्पर्ड, एंड आई एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत अटेंशन भी मिली, मैंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया. बट मुझे जो टीचर्स से, गुरुओं से प्यार मिला स्कूल में, वो आज तक कंटिन्यू करता है. फिर पेरेंट्स की, फैमिली की ब्लेसिंग्स हमेशा रही. उसके बाद मैं जब बिज़नेस में आया तो मुझे हर स्टेप पे कोई मेंटर मिला. आई थिंक मुझे गॉड की अगर सबसे बड़ी कोई ब्लेसिंग मिली आज तक, तो मुझे हर जगह पर एक गुरु मिल गया जिसने मुझे मेरी उंगली थाम ली, या मैंने जिसकी उंगली थाम ली. तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, तो मेरे आइडल मेरे आसपास थे. मैं एकलव्य की तरह उनको दूर से देख के उनसे सीखता रहा, और ज़रूरत पड़ने पे बात भी करता था, और मुझे सपोर्ट भी मिली. तो मेरे रियल लाइफ में हर जगह, बिजनेस में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, हमेशा ऐसे लोग रहे जिनको मैंने आइडलाइज़ किया, जिनके साथ मैंने बहुत सीखा. मेरे कस्टमर्स जो हमारे साथ आज से 40 साल पहले जुड़े, आज भी हमारे कस्टमर्स हैं. हमने कभी कस्टमर्स को लूज़ नहीं किया, और हमने हमेशा ये सोचा कि कस्टमर है तो हम हैं. सो कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी, कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसी वाज ऑलवेज देयर. तो कस्टमर के कहने पे इन्वेस्ट भी करना, रिस्क भी लेना, लॉसेस भी उठाए होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कस्टमर इज़ लाइक अ ग्रोथ इंजन. वो जितनी फास्ट चलेगा, वी हैव टू रन एट देयर स्पीड. And so, of course, all this I've learnt in the world of business. सबसे सीखा है, हर एंटरप्रेन्योर से सीखा है, इंडस्ट्री एसोसिएशन में अपने मेंबर्स से सीखा है, अपने नेबर्स से सीखा है. दूसरों की मुश्किलों में उनका साथ दे के सीख लिया. और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मुश्किल आए. अगर किसी और के साथ मुश्किल आई है और आपने अगर उसकी मुश्किल में उसका साथ दिया, तो आपको ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स उस मुश्किल को झेलना सिखा देता है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और प्रिवेंट भी कर देते हैं. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे बाकी एंटरप्रेन्योर साथियों पे भी आई, और मैंने उनके साथ अगर उनका साथ दिया और समझा, तो नेचुरली वो ज्ञान, वो एक्सपीरियंस मुझे भी आ गया, विच आई शेयर विद द वर्ल्ड. सो आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, द वे माई मेंटर्स हैव हेल्ड माई हैंड. This is one passion, this is one area. If you ask me, the only hobby or interest that I carry is that I love to share and support and advise other entrepreneurs if they are open to it. आपने 12 साल तक लगभग हरियाणा MSME फैसिलिटेशन काउंसिल में जो ये पेमेंट रिकवरी के मैटर्स होते हैं, इन पर आपने क्लोजली डायरेक्टली काम किया है. थोड़ा व्हाट डिड यू डू देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ, let's talk about that experience basically. So what did you do there and what? Very interesting experience. भारत में नया ये लॉ बना था 2006 में, MSME एक्ट बना, और उस MSME एक्ट में एक प्रावधान रखा गया कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की पेमेंट अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज में, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में देनी ही होगी, और अगर डिले होती है तो बैंक रेट से 3 times इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली एज पेनल्टी मिलेगा. तो ये एक, और हर स्टेट को अपने राज्य में एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनानी है जो इस काम को देखेगी, रिकंसिलिएशन कराएगी या आर्बिट्रेशन कराएगी. तो जब MSME एक्ट बना तो पहले तो कई साल सरकारों को लग गए इसको समझने में और फैसिलिटेशन काउंसिल्स को बनाने में. तो हरियाणा में जब ये काउंसिल बनी तो आई वॉज द फर्स्ट मेंबर देयर, क्योंकि 4 गवर्नमेंट के लोग होते हैं, डिपार्टमेंट्स के, एक इंडस्ट्री से होता है. ओके. तो 4 सरकार के लोग थे और एक मैं MSME सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा.
तो 12 वर्ष मैं फैसिलिटेशन काउंसिल का हिस्सा रहा। तो मैंने फैसिलिटेशन काउंसिल में देखा कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं और कभी कभी वो लेट आते हैं तो वो लिमिटेशन एक्ट से बाहर हो जाता है, समय सीमा से बात। कभी उनके पास पुरानी रजिस्ट्रेशंस उन्होंने कभी कराई नहीं एज MSME, तो बायर के पास ये बहाना होता है कि सर हमें पता ही नहीं था कि ये MSME है। और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट आई जो इसने क्लियर किया कि अगर किसी ने MSME में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो They are not eligible. then they are not eligible. Eligibility will start after the day of registration. तो लॉ भी साथ साथ इवॉल्व होता गया। हर कुछ समय में कभी किसी हाई कोर्ट की कोई नई जजमेंट आई, रूलिंग आई, सुप्रीम कोर्ट की आई, तो एक इवॉल्व हुआ ये प्रोसेस। तो मैं इस एवोल्यूशन का हिस्सा बना और मुझे खुशी है कि हमने रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को बहुत स्ट्रेंथन किया। हरियाणा फैसिलिटेशन काउंसिल ने बेहतरीन काम किया, कंट्री की टॉप 2-3 फैसिलिटेशन काउंसिल में से एक बनी। कितने पेमेंट्स रिकवर करे होंगे? लगभग 550 करोड़ की पेमेंट्स तो मेरे सामने रिकन्सिलिएशंस के माध्यम से या आर्बिट्रेशन के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स को मिली। व्हाट वाज द एवरेज टिकट साइज लाइक? जनरली लोगों को कितने का पेमेंट फंसा? 10 लाख से लेके अप टू करोर्स, तो ऐसा कुछ नहीं। And what is the kind of mindset when you compare it to a civil court or a criminal court in terms of these cases? Because I'm sure there are businesses. देखिए इसमें मैंडेटरी ये है कि सबसे पहले रिकन्सिलिएशन, दोनों पार्टीज को बैठाना, उनको समझाना, उनमें रिकन्सिलिएशन अडॉप्ट कराने की कोशिश करना। और अगर लगता है कि रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता है तो फिर किसी आर्बिट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल स्वयं करेगी या what is arbitration for our viewers? मतलब आर्बिट्रेशन मीन्स के दोनों पार्टीज के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई थर्ड पर्सन एज आर्बिट्रेटर या थर्ड एजेंसी एज आर्बिट्रेटर दोनों को समझ के फिर वो अपना अपना निर्णय देगी, अपना रिपोर्ट देगी। तो कभी कभी हम इसमें एक्सपर्ट्स की भी सलाह लेते को भी अपॉइंट करते थे, आर्बिट्रेटर्स को भी अपॉइंट करते थे। तो वो आर्बिट्रेटर्स अपनी रिपोर्ट काउंसिल को देते, जिसको काउंसिल फिर एक बार फाइनली रिव्यू करके फिर अनाउंस करती है अपना अवार्ड। एंड हाउ मेनी टाइम्स आउट ऑफ 10 डज इट हैपन कि इंटेंशनल पैसा रोका गया है SME का? वेरी रेयर। आई थिंक अलग अलग चैलेंजेस, कहीं कभी क्वालिटी का इशू है रोक लिया, लेकिन सरकारी कंपनियों की तरफ से बहुत डिले हमने देखा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, नवरत्न महारत्न कंपनीज। दैट्स राइट। तो लार्ज कॉरपोरेशंस में हमने देखा डिलेज, और कई देखा कि कईयों की आदत ही है पेमेंट लेट देने की। वो चाहे परचेज ऑर्डर में 45 डेज लिखा हो, 90 डेज में देना या 120 डेज में देना। तो उन्होंने इस लॉ को कभी समझा ही नहीं। अब तो ये लॉ और स्ट्रेंथन हो गया। नाउ देयर इज अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स सेक्शन 43BH जिसमें कि वो एक्सपेंसिव डिसअलाउ हो जाएगा। आपने सिडबी के बोर्ड पे सर्व किया है कई साल। सिडबी लोन्स के लिए जाना जाता है, स्पेशली फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो सिडबी के कॉन्टेक्स्ट, चेंज द क्वेश्चन, आपने NSIC के बोर्ड में कई साल किया है, ठीक है, और सिडबी के एडवाइजरी बोर्ड में, ठीक है। जैसे आपने NSIC के बोर्ड के लिए कई साल सर्व किया है, एंड सिडबी के भी एडवाइजरी काउंसिल में आपने सर्व किया है कई साल। तो इन दोनों बॉडीज़ के नज़रिए से अगर आप देखें तो क्या बदलाव आया है पिछले कुछ डेकेड्स में जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए बिजनेस को हेल्प करेगा? ओके, मुझे मौका मिला, मैं NSIC के बोर्ड पर करीब 6 इयर्स तक मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड था। सिडबी के साथ मैंने काम किया, और भी मुझे कई बैंक्स के बोर्ड में और मॉनिटरिंग कमेटीज़ में मैं रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब माहौल काफ़ी अच्छा हो गया है, इन द सेंस कि आज एक एंटरप्रेन्योर के लिए लोन लेना पहले से ज़्यादा आसान है। हमारे ज़माने में, आई विल बी वेरी फ्रैंक, व्हेन आई स्टार्टेड, तो तब बिना कोलेटरल के लोन नहीं मिला करते थे। हर चीज़ के लिए कोई चीज़ मॉर्गेज बैंक को देंगे तब लोन होगा। आज के ज़माने में अब 10 करोड़ तक के लोन किसी भी एंटरप्रेन्योर को बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना मॉर्गेज के मिलते हैं। CGTMSE एक ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसमें जो आपके लोन की गारंटी लेता है, तो थर्ड पार्टी गारंटी की भी ज़रूरत नहीं है। तो 10 करोड़ तक के लोन
की गारंटी CGTMSE ले लेता है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो 20 करोड़ तक के लोन आपको बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकते हैं विद दिस गारंटी। बट इनफैक्ट लास्ट ईयर बजट में सरकार ने एक और स्कीम को अनाउंस किया जो इम्प्लीमेंट हो गया है कि अगर 100 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का डेट है, तो उसको भी बिना कोलेटरल के सिक्योरिटी के लिया जा सकता है और जिसकी गारंटी भी सरकार की एजेंसी लेगी। तो आज बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बट इज दिस ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिफायर और इज इट ट्रू फॉर No, it is true for everyone. In fact, गवर्नमेंट ने इस स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स को भी इन्वॉल्व किया है। आज हमारी एक स्कीम है PM विश्वकर्मा योजना, जिसमें कि अगर कोई फूल माला बनाता है किसी मंदिर के बाहर, उसको भी ये लोन मिलता है। तो आज हाथ का काम करने वाले छोटे से छोटा कारीगर हो तो PM विश्वकर्मा योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रोड साइड सेलर्स के लिए ये लोन स्कीम्स हैं। हाउ टफ और इजी इट इज, व्हाट काइंड ऑफ पेपर वर्क? Very easy. One just has to reach out. There are different agencies implementing. और आज देश में 30-40 लाख लोग बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन ले चुके हैं। अब ये लाखों में है अगर आप बेनिफिशरीज को देखें, जिनका लोन का साइज छोटा, जैसे मुद्रा लोन्स में छोटा लोन है, लेकिन बाकी बड़े लोन्स भी हैं। तो ये स्कीम्स सभी सरकारी कंपनीज की जनरली इमेज वैसी होती है कि वो स्लो मूव करती हैं, देयर इज लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, समटाइम्स देयर इज अ करप्शन एंगल आल्सो टू इट। मैं आई डोंट एग्री टू दैट एट ऑल। आज ज़्यादातर लोन टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, ऑनलाइन हैं, फेसलेस हैं। वो आप एक स्कीम में अप्लाई करते हैं और आपको मिलता है। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? देखिए, अगर बैंक का कोई लोन नहीं देता है तो बैंक के ऊपर भी हम सवाल खड़े करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को लोन लेने के लिए बैंक क्या देखता है? बैंक पहली चीज़ देखेगा कि एंटरप्रेन्योर जेन्युइन है या नहीं है, उसका KYC ठीक है। नंबर 2 कि क्या वो उस स्कीम में फॉल कर रहा है, क्या उसका प्रोजेक्ट, बैंक जिसके लिए पैसे उसको दे रहा है, क्या वो पैसा बैंक के पास वापस आएगा या नहीं आएगा। तो जब जैसे ही बैंक को ये 2 क्लैरिटी हो जाती है तो बैंक का तो काम ही है लोन देना। अदरवाइज बैंक फिक्स डिपॉजिट्स का या अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट कैसे पे करेगा अगर बैंक लोन नहीं देगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है लोन देना, और उसी से उनको अर्निंग्स होती हैं जिससे कि वो पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। लेकिन उनको नेचुरली लॉसेस ना हो बाद में, इसका उनको ध्यान रखना होता है। तो आज ऑनलाइन बैकग्राउंड चेक हो जाता है। सिबिल जैसी एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन डेटा विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स देती हैं। अगर आप GST रिटर्न्स भरते हैं तो GST का डेटा आपके लेंडर के पास तुरंत आ जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न भी पीछे से वो साथ के साथ कॉर्पोरेट हो जाती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स, GST और पुराना क्रेडिट का स्कोर, ये 3 चीज़ें इमीडिएटली डिफाइन कर देती हैं। और इसीलिए आज PSB लोन्स इन 60 मिनट्स जैसे और किसी का GST अगर फ्रेश है, नया है, तो क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न और सिबिल स्कोर तो लोगों के पास उनकी पर्सनल परचेज हिस्ट्री से होगा। बट सपोज कीजिए किसी ने नया GST रजिस्टर किया और उनकी पहली ही GST है वो। सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सिबिल स्कोर भी नहीं होगा, जो लाइफ में फर्स्ट टाइम कदम रखेंगे। आप कॉलेज से बाहर निकले और अब आप अपना कोई काम करना चाहते हैं तो इनको भी लोन मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि आप GST में आपका रिकॉर्ड है तभी आपको लोन मिलेगा। एंड दैट स्केल ऑफ अमाउंट इज आल्सो अराउंड crores। हाँ, दैट्स राइट। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट। आप कितना अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं अपने बैंक को। बैंक आपके स्किल सेट से, आपके पास जो ऑर्डर्स हैं वो हाथ में है या नहीं है, आपने प्रोजेक्शन क्या दिया है, कैश फ्लो प्रोजेक्शन क्या है, CMA डेटा क्या है, फिर एक एंटरप्रेन्योर की अपनी पहचान क्या है। अब आज कोई IIT से ग्रेजुएट बाहर आए और वो लेट अस से ड्रोन टेक्नोलॉजी में कुछ काम करे और वो काम करता है, और एक बैंकर को अगर भरोसा है कि ये कर सकता है काम, ही इज़ वेल क्वालिफाइड एंड दिस इज़ द प्रोजेक्ट, ये आपके सामने है, तो क्यों वो फंड नहीं होगा। और जैसे बैंक ने तो अपना रिस्क ले लिया, अब एक रिस्क है एंटरप्रेन्योर का भी कि एंटरप्रेन्योर को भी रिस्क लेना है जी। कई केसेस में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डोंट वर्क आउट दैट वेल। तो ऐसे केसेस में जब लोन डिफॉल्ट होते हैं तो वो जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर आती है, लायबिलिटी, या एंटरप्रेन्योर के ऊपर आती है? देखिए, एंटरप्रेन्योर की पर्सनल गारंटी तो लोन के साथ रहेगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जब
कोई भी फंडिंग होती है 100% नहीं होगी, सिर्फ 25% मार्जिन मनी है Correct. और 75% मान लीजिए money किसी है, बैंक ने दिया। फिर बैंक ने जो लोन दिया तो उसका 1 परसेंटेज पॉइंट CGTMSE जो एक अलग से ट्रस्ट है वो उसने एक तरह से उसका इंश्योरेंस का रखा है। Okay. तो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बैंक को CGTMSE रीइंबर्समेंट करेगा ताकि बैंक का लॉस ना हो। तो थोड़ा सा रिस्क एंटरप्रेन्योर को लेना है, 25% जो रिस्क That's right. एंटरप्रेन्योर का हो और गया थोड़ा सा रिस्क CGTMSE लेता है और थोड़ा सा बैंक लेता दैट्स राइट। तो ये इसी इकोसिस्टम में ग्रोथ हो रही है और आज देश में ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले CGTMSE में केवल 1 करोड़ तक का लोन मिलता था, फिर इस सीमा को बढ़ा के 2 करोड़ किया गया, फिर 5 करोड़ हुआ, अब 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हुआ और एक्सपोर्टर्स के लिए 20 करोड़ और अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए 100 करोड़। इन जनरल जैसे आपने QCI के भी बोर्ड पे सर्व किया है और आपने लाइक तमाम इंडस्ट्री बॉडीज के बोर्ड पे सर्व किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑब्जेक्टिवली कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? अमेजिंग। 24,000 कानून इस देश में ऐसे हैं, ऐसे थे जिसमें कल तक, पहले तक एक एंटरप्रेन्योर को जेल भी हो सकती थी। आज 24,000 कानूनों में बदलाव किया गया है जिसमें कि जिसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी अगर वो गलती हुई तो केवल जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, जेल नहीं होगी। तो ये अपने आप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी बड़ी चीज़ है। बहुत सारे रिटर्न्स को समाप्त किया गया, GST जैसा लॉ आया, 1 नेशन 1 टैक्स, उसके साथ साथ होने वाले ऑक्ट्राई, चुंगी, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सब को ख़त्म किया गया। आज 1 नेशन 1 टैक्स हो गया। इनकम टैक्स का नया कोड अब सामने है, लॉज को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। असेसमेंट्स जो हैं अब फेसलेस हो गई है, ऑनलाइन असेसमेंट्स होती हैं और कोई भी स्क्रूटिनीज या असेसमेंट्स होती तभी हैं जब कोई डिस्क्रिपेंसी हो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, वेलोसिटी ऑफ डूइंग बिजनेस भी आ चुका है। right. फिर हर स्टेट का एक पोर्टल है, ऑनलाइन अप्रूवल्स मिल रही हैं। बहुत काम बाकी है, मैं आई एग्री करता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और उस बारे में आप पूछिएगा मुझसे बाद में कि क्या चीज़ करना बाकी है। लेकिन जो हो चुका है वो क्रेडिट भी मैं देना चाहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत काम हुआ है, लगातार रिटर्न्स को कम किया गया है और फैसिलिटेशन है बाकी। और टेक्नोलॉजी ने अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है, टेक्नोलॉजी ने कितना आसान कर दिया है हर चीज़ को। लेकिन आगे आने वाले समय में अभी भी बहुत से आर्केक लॉज हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज, CLU जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत ही मिडिवल बेस्ड एक इसके नॉर्म्स चल रहे हैं और इसमें बहुत परेशानी होती है एंटरप्रेन्योर्स को। मुझे खुशी है ये कि पिछले दिनों मैंने देखा कि आंध्र प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला कि अब वो जल्दी ही CLU के लॉज को ख़त्म कर देंगे और एक पूरा एरिया होगा जिसमें अलाउड होगा कि आप यहाँ कहीं भी उद्योग लगा सकते हैं। तो कोई उद्योगपति जाके अपना ज़मीन लेके अपना काम स्टार्ट करे, कोई ज़रूरी नहीं है CLU अप्रूवल्स लेने की। तो ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। Correct. एक और ब्रेक थ्रू है। Because a lot of land is right now not being used because it is marked agriculture use That's only. right. So अगर आंध्र प्रदेश कर सकता है तो हो सकता है आने वाले समय में हरियाणा भी करे, उत्तर जैसे प्रदेश स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो जनरली एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव में हरियाणा हैज नेवर बीन अ टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल व्हेन इट कम्स टू लाइक अ इंडस्ट्रियल स्टेट. South Indian states, Gujarat, Maharashtra, these are the states that come in the top of the mind. Agreed, but then Punjab comes in the top of the mind. Look at North. Haryana has surpassed Punjab many years back. Haryana was amongst the top 3 in ease of doing business in the country. Haryana's per capita income is the highest amongst the large states in India. Haryana has amazing record. Haryana has incentives. आज यहाँ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कोई लगे और स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो लाखों में नहीं करोड़ों में सब्सिडीज़ हैं और एक नहीं अनेकों स्कीम्स हैं
in Haryana where micro and small enterprises are getting facilitated. फिर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलग पॉलिसी है, ईवी की अलग पॉलिसी है, डेटा सेंटर की अलग है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अलग है, फार्मा के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए. तो हरियाणा हैज़ एन अमेजिंग एंटरप्राइज डेवलपमेंट पॉलिसी. So do you think, like, what do you think about the future of Haryana as an industrial state? In the next 10 years, what do you think can happen or will happen in Haryana? हरियाणा इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. हरियाणा में ऑलरेडी आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है. हरियाणा बहुत बड़ा निर्माता है ट्रैक्टर्स का. Automobile, yes, totally. But do you think an IT, yes? But what about, let's say, textile, which is majorly seen in- Garments, many large garment exporters are, you will find in Haryana. Many food processing giants are in Haryana, and many electronic units are in Haryana. What about pharmacy? Is there something coming forward for pharmacy? Pharmacy, Gujarat leads, Okay. and there is no doubt about it because the entire ecosystem. मैं लास्ट ईयर ही देख रहा था कि 183 नए फार्मा यूनिट्स 24-25 में लगे, जिसमें कि 153 गुजरात में लगे. सो हर स्टेट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है. व्हाट अबाउट इंजीनियरिंग वर्क्स और इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें जनरली आई हैव सीन चेन्नई एंड बैंगलोर एंड होसोर, दीज एरियाज आर देखिए, ऑफ कोर्स सम स्टेट्स हैव दैट एज. अभी तक जैसे स्टार्टअप्स के लिए बैंगलोर एंड कर्नाटका वाज ऑलवेज एडवांटेजियस. साउथ इंडिया में बहुत स्पेशली तमिलनाडु वगैरह High-tech में वहाँ ऑटोमोबाइल भी नई Automobile is कंपनीज very big there, आई. yeah. सो इट्स अबाउट वन OEM कम्स एंड द एंटायर इकोसिस्टम Transforms, चेंजेस. yeah. अगर एक हुंडई या किया जैसी कंपनी सेटअप करती है तो पूरा एक इकोसिस्टम वहाँ क्रिएट हो जाता है, और होना भी चाहिए. सभी इंडस्ट्री एक जगह पे क्यों कॉन्सेंट्रेट हो? इट शुड बी वाइड स्प्रेड. सो हरियाणा हैज़ प्रेजेंस ऑफ Maruti Suzuki with different plants in Manesar, in Gurgaon, in Khargoda now, and then in Gujarat Hero is also. And likewise, so इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्लांट्स आ रहे हैं और लग रहे हैं. Tatas have a strong presence in Maharashtra and Gujarat now. Correct. And Mahindras have a very strong presence there. Now Toyota is setting up a new plant in Maharashtra. Mercedes and other companies are there. Then Hosur and Karnataka and Tamil Nadu. That belt has a lot of automobile companies. So widespread. I think the entire country today is covered with their ecosystem. और तो फार्मा में जैसे मैंने देखा गुजरात बहुत आगे है. उत्तराखंड में बहुत से फार्मा यूनिट्स हैं Yes. जो कि पहले एक्साइज और टैक्सेशन बेनिफिट्स के लिए गए Correct, थे. हिमाचल प्रदेश को अगर मैं देखूं तो बद्दी जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में भी बहुत यूनिट्स हैं Correct. जो पहले किसी टैक्स एडवांटेज के लिए कभी गए और अब वहाँ पर आज वो टैक्स एडवांटेज नहीं भी है तो भी वहाँ रुके हुए हैं. जम्मू एंड कश्मीर में बहुत से यूनिट्स हैं जो जहाँ पर टैक्स एडवांटेज की वजह से लोग गए और बहुत से इंसेंटिव्स हैं. तो हिली एरियाज़ में वैसे भी बहुत से टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं. बट डिफरेंट स्टेट्स आर नाउ कम्पीटिंग विद ईच अदर. Okay. अगर मैं जर्नी देखूँ आज उत्तर प्रदेश की, अद्भुत काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहाँ पर आज डिफेंस सेक्टर के लिए स्पेशल डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है. Okay. वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को, MSMEs को बहुत सपोर्ट मिल रही है. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है और ग्रास रूट पे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं और नए आयाम, नए ओपनिंग्स हैं. एंटायर वर्क कल्चर में उत्तर प्रदेश में एक ग्रेट चेंज है. तो ये अच्छी बात है कि आज अलग अलग स्टेट्स कॉम्पीट कर रहे हैं. But do you think this will affect the growth of other states? Because Uttar Pradesh was generally considered as the source of all labor. All the migration of... अभी as on now, no. As on date, Uttar Pradesh is competing with and giving run for money to other states. In fact, states like Punjab now need to wake up. Correct. And find their supremacy again. Correct. So no state can be complacent. So different states have gained supremacy and have lost on their advantages because of their own different reasons. Understood. So it is time for Punjab to look upward. In the next 10 years or in the next 20 years, India is going to become a manufacturing giant. And that will probably create a lot of 100 crore companies, lot of 1,000 crore companies. I don't know how many 100 crore companies are there right now today in India, especially in the manufacturing side of it. Second is, what
in your opinion government should do to facilitate this change faster with more velocity like we discussed? Alright. मैं अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, अभी आपने पूछा, लगभग इंडिया में लगभग 23 लाख कंपनीज हैं, LLPs एंड कंपनीज Private limited, जो कि एक्टिव हैं. Okay. और अगर मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो आप ये देखिए कि भारत में इस समय लगभग 23 लाख एक्टिव कंपनीज हैं और या LLPs हैं जो प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड है. Okay. अगर इन कंपनीज में मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देखूं तो आज 5 करोड़ से 50 करोड़ तक की सिर्फ 6,000 कंपनीज, मतलब 5 करोड़ से 50 करोड़ नेटवर्थ टर्नओवर की, 50 करोड़ से 250 करोड़ तक केवल 1600 कंपनीज या 1700 कंपनीज, और 250 करोड़ से 500 करोड़ तक लगभग 1200 कंपनीज हैं, और 500 करोड़ से 1000 करोड़ से ऊपर जो है सिर्फ 441 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. ये प्रेजेंट स्टेटस है. when you say manufacturing units, is it like one setup or that one company having multiple units? One company having multiple units. Yeah. Okay. That's abysmally small, let's say. Yes. 6,000 companies. हाँ, तो इसीलिए इसको ग्रो करने का बहुत अभी अमेजिंग स्कोप है. अगर ये सबको आप टोटल कर लें 10,000 से तो अराउंड 10,000. Correct. तो अराउंड 10,000 कंपनीज ही मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में ऐसी हैं जो 5 करोड़ से ऊपर है. 5 करोड़ से ऊपर, तो विच इज एक्चुअली नथिंग. और 1,000 करोड़ से ऊपर वाली तो सिर्फ 441. तो इसीलिए इस सेक्टर में अद्भुत पोटेंशियल है. मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कम हुआ है, हमारा GDP के अगेंस्ट हमारा शेयर कम हुआ है. We have manufacturing has a share in the GDP of only about 14% today. This needs to be increased to 25%. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत जॉब्स देता है, सप्लाई चेन में बहुत स्ट्रेंथ देता है. तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस है. अभी एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को क्रिएट करने के लिए और उसकी पॉलिसीज़ की तैयारी चल रही है. अलग अलग स्टेट्स भी मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने के लिए स्कीम्स ला रही हैं. PLI जैसी स्कीम्स भी केंद्र सरकार की हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की, जिसमें स्पेशल सेक्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट किया जा रहा है. सो दिस इज़ एन एरिया जो भारत को करना ही पड़ेगा. एंड स्पेशली नाउ कि कभी चाहे टैरिफ वॉर्स को देखें डिफरेंट वर्ल्ड में, या कोविड जैसी हमने सिचुएशंस देखी, तो चाइना +1 की पॉलिसी एक सामने आई, कई लोगों ने फॉलो किया. हम उम्मीद करते हैं कि इससे मेक इन इंडिया और सुदृढ़ होगा और इंडिया के पास और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे. Great. And what is it that India is not doing that it should do? Okay, India is doing a lot of things and mostly right, and especially looking at the manufacturing sector in terms of incentivizing, etc., etc. There are some things where I believe we are missing out on and we should immediately address, and that is manufacturing in the MSME sector. This is one area जहाँ पर हमें लैंड रिफॉर्म्स और लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स को ड्रास्टिकली चेंज करना है. तो CLU नॉर्म्स को हमें इमीडिएटली चेंज करना होगा. अगर हम चाहते हैं कि हम रेगुलराइज कर दें इन यूनिट्स को. बहुत से यूनिट्स, लाखों यूनिट्स नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज़ में हैं, उनके पास फैक्ट्री लाइसेंस नहीं होता, पोल्यूशन का CTO नहीं होता, फायर का NOC नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि उनके पास CLU का डॉक्यूमेंट नहीं है. तो ऐसे यूनिट्स को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर GDP में और ज़्यादा बढ़े. और क्योंकि ऐसे लाखों यूनिट्स को बैंक से लोन नहीं मिलता क्योंकि उनके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. SIDBI जैसे इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देंगे अगर ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, CLU नहीं है या पोल्यूशन का CTO नहीं है. गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स पर भी ये लोग मिस आउट कर जाते हैं. तो आज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को सचमुच में बढ़ावा देना चाहते हैं तो MSME सेक्टर की ये बेसिक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को अगर गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल पर एड्रेस कर दे तो मुझे लगता है कि एक मैसिव चेंज आएगा, एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ होगा इन मिनिमल टाइम. So now we'll just do the final bit, and then I'll also record an intro because I did not record an intro in the beginning. Right. So my question is like very simple.
Any final bits or anything where you would like to summarize this discussion, or any message for that you would like to share to entrepreneurs who are watching this? There was never a better time to be in business in India or to invest. This is the time when India's ecosystem and environment is the best for the entrepreneurial journey. आज बैंक से लोन मिलना कितना आसान है। हज़ारों लाखों बैंक्स की ब्रांचेस देश के हर कोने में हैं। आज 10 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी, बिना गारंटी के मिलता है। एक्सपोर्टर्स को 20 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी के मिलता है। अगर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में आप इन्वेस्ट करें तो 2 करोड़ तक के लोन पर आपको 2% इंटरेस्ट की सब्सिडी भी मिलती है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स लाखों में नहीं, करोड़ों में इंसेंटिव्स देती हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, अगर वो बिज़नेस लगाएं और बिज़नेस को ग्रो करें। आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिफेंस सेक्टर में लें तो सैकड़ों कंपोनेंट्स जो अभी तक डिफेंस सेक्टर इंपोर्ट करता था, अब इन्होंने तय किया है कि वो केवल इंडियन कंपनी से भारत में बना हुआ मेड इन इंडिया ही लेंगे। तो एक नई अपॉर्चुनिटी है। आज गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और इंस्टीट्यूशंस में मैंडेटरी कर दिया है कि कम से कम 25% ऑफ गवर्नमेंट परचेज वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से ही होगी। और ये कितना बड़ा रिजर्वेशन हुआ एमएसई सेक्टर के लिए। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि आज ये परचेज 25 से बढ़कर लगभग 40% हो गई है फ्रॉम द एमएसई सेक्टर। तो डिफेंस हो, रेलवेज हो, सरकार की कंपनियां हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो, खरीद हो, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बना ताकि पेमेंट्स को जल्दी आ सके। फैसिलिटेशन काउंसिल्स हर राज्य में बनी जो जल्दी पेमेंट्स कहीं अगर डिले हो गई हैं, फंस गई हैं, तो उनको टाइम से रिकवर करा के दे सकें। इसके अलावा जेम्स पोर्टल है जहां पर ऑनलाइन आप देश में किसी भी परचेज, गवर्नमेंट परचेज के लिए आप टेंडर फाइल कर सकते हैं। ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स आज सामने हैं कि जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स इन ओपन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके डिजिटल नेटवर्किंग के साथ अपने ई-कॉमर्स को एट मिनिमल कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। और इस सारे प्रोसेस के लिए हैंड होल्डिंग है। सर्कुलर इकोनॉमी में अगर आप इन्वेस्ट करें तो 25% तक की कैपिटल सब्सिडी आपको मिलती है। इसके अलावा बार कोडिंग के लिए सब्सिडी है और बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो ये इंसेंटिव्स अनगिनत हैं। केवल आपको और मुझको, एक एंटरप्रेन्योर को, अपनी जर्नी को चुनना है, अपने ड्रीम पर विश्वास करना है। सबसे पहले अपना एक फर्म बिजनेस प्लान बनाना है। हो सके, ज़रूरत हो तो एक अच्छे मेंटर को ढूंढिए जो आपको गाइड कर सके, एडवाइस कर सके कि आप सही बैंक में जाके अप्लाई करें, कितना आपको लोन चाहिए, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना है, आपको टीम बिल्डिंग करनी है, आपको IPRs लाने हैं, अपने ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करें, अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करें। आज क्वालिटी के नए मानक क्या हैं? गवर्नमेंट ने नई रेगुलेशंस बनाए हैं, BIS सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो BIS सर्टिफाइड है? नहीं है तो उसको कैसे आप सर्टिफाई कराएं? एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? एक्सपोर्ट के लिए क्या सर्टिफिकेशंस चाहिए? आपके क्या अपने एक्सपोर्ट को आप इंश्योरेंस करा सकते हैं? क्या आप अपने सेल किए हुए माल की इंश्योरेंस करा सकते हैं? प्रोडक्ट रिकॉल पॉलिसी क्या है? बिजनेस के लिए सक्सेशन प्लान आप कैसे रखें? आगे आने वाली जनरेशन आपके बिजनेस को कैसे टेक ओवर करे? और कौन कौन से रिस्क हैं बिजनेस में? साइबर सिक्योरिटी एक रिस्क है तो उसको कैसे कवर करें? आपके बिजनेस में अगर और रिस्क हैं, ट्रेडिशनल रिस्क हैं लाइक फायर, सेफ्टी एटसेट्रा, उसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को, डिज़ाइन को, प्रोडक्ट फेलियर्स को, रिकॉल्स को, इन सब के लिए भी आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हैं। तो आइडिया ये है कि ओवरऑल एक रिस्क मिटिगेशन, इसके अलावा राइट स्किल्स, आप कैसे टैलेंट को लाएंगे, कैसे उनको ट्रेन करेंगे, फिर कैसे उनको रिटेन करेंगे। फाइनेंस में क्या ऑप्शंस हैं? क्या केवल डेट से ही फंड मिलता है? क्या इक्विटी भी आपके फंड्स को मिल सकती है? आज गवर्नमेंट ने 10-10 हज़ार करोड़ के 2 फंड ऑफ फंड्स बनाए हैं जो एज इक्विटी पार्टिसिपेट करते हैं स्टार्टअप्स के साथ। तो क्या उसका कोई फंड MSMEs को भी मिल सकता है? और मिल सकता है तो कैसे? डेफिनेटली आपको रीच आउट करना है।
NSIC जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके लिए रॉ मटेरियल्स को एग्रीगेट करते हैं और आपको मार्केट से सस्ता रॉ मटेरियल दे सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आज इकोसिस्टम में जो पहले नहीं हुआ करती थी, जो वक्त के साथ बनी है। तो आप यकीन मानिए कि आज ओवरऑल एनवायरनमेंट में सरकार की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऐसे सपोर्ट मैकेनिज़म्स हैं जिनका फ़ायदा आज का एंटरप्रेन्योर उठा सकता है। लेकिन आपको और मुझको ही जागना होगा और इसीलिए आपको भी जुड़ना होगा राइट इंस्टीट्यूशंस से, राइट मेंटर्स से, जो आपको राइट एडवाइस दे सकें और आप ताकि 5 साल में वो पालें जहाँ पहुँचने में शायद मेरे जैसे लोगों को 40 वर्ष लगे। सर, आपका जो एक्सपीरियंस है इतना सारा और आपने जो भी अभी तक गेन किया है अपने वर्किंग में, हाउ आर यू शेयरिंग दैट फॉरवर्ड विद लाइक अदर एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर SMEs? एक मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी ही इनिशियल स्टेजेस में मैं एक तरफ अपना काम कर ही रहा था और सीख रहा था। तो मुझे मौका मिला और मैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस जो भी लोकल हमारे एरियाज़ में थी उनके साथ जुड़ा रहा और उससे मुझे बहुत एंटरप्रेन्योर से मिलने का मौका भी मिलता था, उनसे मैं सीखता भी था और शेयर भी करता था। तो एक रूटीन में एक हैबिट हो गई। तो आप समझ लीजिए जब जितना समय मैंने अपने बिज़नेस को दिया है उतना समय या इवन उससे ज़्यादा शायद मैंने अपने बाकी साथियों के साथ एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड को या दूसरों के लिए भी दिया है और जिससे कि मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है व्यक्तिगत तौर पे, मैंने बहुत सीखा है। और फिर मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी लाइफ में और एक सवाल था मैं हमेशा पूछता था कि अपने आप से कि बिज़नेस करना कला है या विज्ञान? अगर बिज़नेस करना कला है तो मैं तो उसके काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि हमें तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक बनाते हैं वही क्वालिफाई होता है, उसी की पेमेंट मिलती है। एक पंखा भी जो एंटरप्रेन्योर बनाता है तो 7 साल की वारंटी देनी होती है और ख़राब हो जाए तो रिप्लेसमेंट देनी है या ठीक करके देना है। आप कार लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, हर प्रोडक्ट की वारंटी और गारंटी है, नहीं तो रिप्लेसमेंट है। तो हमें वो प्रिविलेजेस नहीं है जो एक मूवी मेकर के पास है कि फिल्म देख ली, पसंद ना आई तो फिल्म मेकर आपको पैसे वापस नहीं करता। लेकिन अगर मैंने पंखा बेचा और आपको ख़राब निकला तो आप उसकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि लाइफ में जो बिज़नेस करना है शुरुआती स्टेज पे कला हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप बिज़नेस आप बढ़ाते हैं तो आपका बिज़नेस एक साइंटिफिक प्रोसेस से चलने लगता है। बिज़नेस का एक साइंटिफिक रोड मैप है, ग्रोथ का एक साइंटिफिक रोड मैप है और अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका बिज़नेस लगातार ग्रो कर सकता है। तो मैंने 10 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ किसी भी बिज़नेस के आइडेंटिफाई किए कि अगर उन 10 एरियाज़ में लगातार काम किया जाए तो बिज़नेस के ग्रोथ के चांसेस लगातार बने रहते हैं और वो बिज़नेस ईयर आफ्टर ईयर, डिकेड आफ्टर डिकेड, बल्कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ग्रो कर सकता है। और इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिस प्रोग्राम का नाम है गैप्स, ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इट्स अ 10-point प्रोग्राम। फिर हर ग्रोथ पॉइंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंसेंटिव है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। बहुत सारे सपोर्ट प्रोग्राम्स कभी कभी अलग इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से भी आते हैं। वर्ल्ड बैंक के भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स आते हैं, यूनिडो के प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते रहे जिसका फ़ायदा एंटरप्रेन्योर्स उठाते हैं या उठा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के क्या बेनिफिट्स हैं उन सबको समेट कर एक ये प्रोग्राम हमने गैप्स प्रोग्राम बनाया। मुझे खुशी है कि आज भारत के लगभग 27 शहरों में एंटरप्रेन्योर्स इस गैप्स प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। ऑनलाइन मैं उनको एडवाइस भी करता हूँ और उनको गाइड करते हैं। इट्स अ 10-point प्रोग्राम जिससे वो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं। इट्स अ कंप्लीट 360-degree प्रोग्राम फॉर एन एंटरप्रेन्योर। उसकी लीगल प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेबर लॉस की उसको क्या तैयारी करनी है, ESI, प्रोविडेंट फंड, अदर पहलू, ग्रेजुइटी, बोनस, इन सब की तैयारी कैसे की जाए, एक्सपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो, सरकार की और कंप्लायंसेस कैसे होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, बैलेंस शीट की तरफ कितना ध्यान दें, ग्रो और कहाँ करें, किस कंट्री में जाके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें,
प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करें, बिजली को कैसे बचाएं, वेस्टेजेस को कैसे पहचानें और कम करें, सक्सेशन प्लानिंग कैसे करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे कवर करें। तो ये सभी के साथ साथ नेटवर्किंग एंटरप्रेन्योर्स में कैसी हो, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग कैसी हो और कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर कलेक्टिवली वो तेज़ी से आगे चल सकें। तो इन सभी को 360 डिग्री प्रोग्राम्स को मैंने बनाया, एक गैप्स के नाम से उसको टाइटल दिया और लगातार आज पूरे भारत के एंटरप्रेन्योर्स इसके साथ जुड़ रहे हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी है और ये ऑफलाइन भी है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जब हम देखते हैं कि इनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है ग्रो करने का, आज 30-40 करोड़ की टर्नओवर पे अटक गए हैं और ये बहुत इजीली 200-500 करोड़ पर जा सकते हैं या इवन बियॉन्ड। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम स्पेशल पूरी टीम उनके साथ ऑल राउंड काम करती है, उनके शॉप फ्लोर पर भी, उनके फाइनेंसेस पर, उनकी फंड रेजिंग पर, उनकी टीम बिल्डिंग पर, स्किल बिल्डिंग पर, इनोवेशन पर और उनकी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर। सो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बेसिक लेवल का गैप्स हो या एडवांस्ड गैप्स हो, आज एंटरप्रेन्योर्स इस साइंटिफिक फार्मूला को अगर समझ जाएं और इस राइट मेंटरिंग को अगर देख लें तो एंटरप्रेन्योर को अपने आप आगे जाने के लिए वैसा ही बिजनेस का रास्ता मिलता है जैसे गूगल एक मैप आपको दिखाता है ताकि आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। तो गैप्स अपने आप में एंटरप्रेन्योर्स को मंजिल पर जल्दी फर्स्ट टाइम राइट ले जाने का प्रोग्राम है ताकि उनके रिसोर्सेज कम लगें, उनका समय कम लगे, उनकी एनर्जी कम लगे और चांसेस ऑफ फेलियर्स समाप्त हो जाएं। सो ग्रेट। सो आई थिंक आज आपने राजीव जी को सुना, बहुत सारी बातें शेयर करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। अगर आपको उनका कंटेंट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको गैप से जुड़ना हो तो प्लीज़ विजिट rajivkchavla.com और वहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करिए और हमारे वेबिनार को ज्वाइन करिए जहाँ पर आप थोड़ा और डिटेल और जानकारी में गैप्स के अराउंड हम बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।